Hello everyone, this is Dikshansh welcoming you to Dikshansh EduTech. Today I am going to take English of class 10 and the name of the lesson is Dust of Snow. This is a beautiful poem written by Robert Frost. As you very well know that Robert Frost is known as a nature poet and he has written very beautifully in a natural way. So let's move towards this poem, and first of all I would like to give a brief introduction of Robert Frost. Then I will give a brief introduction of the poem, then I will teach the poem in detail. Robert Frost, this is the beautiful picture of Robert Frost when he was young. Robert Frost, whose full name is Robert Lee Frost. He was born on March 26, 1874 in San Francisco, California, US, United States. And he died on January 29, 1963, Boston, Massachusetts. And he is remembered as an American poet who was much admired for his depictions of the rural life of New England. So, Robert Frost has tried to depict, or he has depicted, I must say, the rural life of people in New England. His command of American colloquial speech and his realistic verse portraying ordinary people in everyday situations. And Robert Frost has a good command over American colloquial speech, means local American language, that is called American colloquial speech. And he has tried to portray the real pictures of ordinary people in everyday life, everyday situations. His verse, the lines of the poem and the verses, they portray the real picture of ordinary people, common people in everyday life. So this is what is said about Robert Frost. Next. Introduction of the poem. Now let's go towards the introduction of the poem. Dust of Snow is a beautiful short poem written by Robert Frost. So Dust of Snow जो है एक बहुत ही सुंदर कविता है जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, और ये इतना सुंदर कविता है कि इतना सुंदर एक छोटा सा कविता है, बहुत ही छोटा कविता है जिसका बहुत ही वाइड मीनिंग है, विच हैज अ वेरी कंप्रिहेंसिव मीनिंग, वेरी डीप मीनिंग. So this poem gives us a true message to us how we should live our life. This poem Dust of Snow is related to the beautiful moments of life of people. People sometimes they undergo through certain situations where they have to live in grief or sorrow. This poem tells that even a simple moment has a large significance. यह कविता यह दर्शाता है कि हमारी जिंदगी में कभी भी एक साधारण सा पल आ जाए, उसका भी एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत महत्व होता है. एक साधारण सा पल का बहुत महत्व होता है हमारी जिंदगी में. The poet has mentioned crow and hemlock tree in this poem. और कवि ने इस कविता में क्रो के बारे में चर्चा किया है और हेमलॉक ट्री के बारे में. हेमलॉक ट्री एक प्रकार का पॉइजनस एक पौधा है जिसको हिंदी में कहते हैं धतूरे का पौधा, और खास करके क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ये बैड ओमेंस से रिलेटेड रहते हैं. दे सिग्निफाई बैड ओमेंस, ये अशुभ माने जाते हैं, इसको शुभ नहीं माना जाता है. जहां क्रो और हेमलॉक ट्री की हम बात करते हैं,
Crow signifies his depressive and sorrowful mood, and hemlock tree is a poisonous tree. मैं पहले ही बोल चुका हूं कि क्रो क्या करता है, क्रो क्या दर्शाता है, ये कवि का डिप्रेसिव एंड सॉरोफुल मूड को दर्शाता है. कवि का बहुत ही माने दुखी रहता है, कवि बहुत डिप्रेशन में रहता है, उसी को दर्शाता है क्रो. और हेमलॉक ट्री क्या है, एक पॉइजनस ट्री है. तो क्या असर होता है हेमलॉक ट्री से, वो भी यहां दर्शाया गया है कि हेमलॉक ट्री तो माना जाता है बैड ओमेन, ये अच्छा चीज नहीं माना जाता है, लेकिन क्या होता है कवि के साथ आगे देखते हैं. बोथ दिस सिग्निफाई दैट द पोएट वाज नॉट इन अ गुड मूड, एंड सो ही डिस्क्राइब्स द डार्क डिप्रेसिव एंड बीटर साइड ऑफ नेचर टू प्रेजेंट हिज सिमिलर मूड. दोनों चीज जैसे कि क्रो है और हेमलॉक ट्री, ये जस्टिफाई करते हैं कि पोएट वॉज नॉट इन अ गुड मूड, पोएट वॉज इन अ बैड मूड. पोएट अच्छे मूड में नहीं थे. ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड एंड ही वॉज इन एंगर. ही वॉज शोइंग हिज एंगर थ्रू हिज डिप्रेशन. एंड सो द पोएट डिस्क्राइब द डार्क डिप्रेसिव एंड बीटर साइड ऑफ नेचर. नेचर जो होता है प्रकृति का बहुत ही क्या बोलते हैं, अंधेरा, बहुत बैड मूड, और कड़वा जो होता है, कड़वा सच होता है, और यह जो जिंदगी की कड़वाहट होती है उसको दर्शाया गया है प्रकृति की, टू प्रेजेंट हिज सिमिलर मूड. उसके मूड को दर्शाने के लिए पोएट क्या है, ये रॉबर्ट फर्स्ट बहुत ही खराब मूड में है, बहुत बुरे मूड में है, और बुरे सिचुएशन में है. और ये जो नेचर को पोएट ने दर्शाया है, नेचर को बोलने से क्रो हो गया और ये हेमलॉक ट्री हो गया, उसके उनके डिप्रेसिव मूड से तुलना किया है, इसको सिमिलरिटी पाया है. तो सिमिलर मूड को तुलना करने के लिए क्रो और हेमलॉक ट्री का उपयोग किया है. तो चलिए देखते हैं इस कविता में और आगे क्या होता है. अभी भी इंट्रोडक्शन कुछ बाकी है. द पोएट सेज दैट वंस ही वाज इन अ सैड डिप्रेसिव मूड एंड वाज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री. पोएट का कहना है कि एक समय की बात है, वो बहुत ही खराब मूड में थे, बहुत गुस्से में थे, और उनका मूड भी अच्छा नहीं था, उनका समय भी अच्छा नहीं जा रहा था. A crow sitting on the same tree shook off the dust of snow. क्या हुआ कि एक घटना हुआ कि एक क्रो हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था और उस ट्री पर पूरा डस्ट ऑफ स्नो पड़े हुए थे. स्नोफॉल गिरा था, मतलब स्नो गिरे हुए थे, तो स्मॉल पार्टिकल्स जो होता है स्नो का, जो कि दैट रिमेन ऑन द सरफेस आफ्टर द स्नोफॉल on the poet. So what happens? The small particles of snow that remain on the surface after snowfall, they fall on the poet. वो कवि के शरीर पर गिर जाते हैं. This simple action changed the poet's mood. और क्या होता है कि क्रो उस हेमलॉक ट्री पे बैठा रहता है और जैसे शेक करता है हेमलॉक ट्री के ब्रांचेस को, पत्तों को, वैसे ही स्नो जो कि स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं स्नो के, वो कवि के शरीर पर गिरते हैं. और ये थोड़ा छोटा सा एक्शन जो होता है, इससे कवि का पूरा मूड बदल जाता है. जो एगोनी में रहता है, गुस्से में रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, उसका मूड चेंज होकर हैप्पी मूड में तब्दील हो जाता है. वो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो जैसे ही उसके शरीर पर गिरता है. He realized that he had just wasted a part of his day repenting and being lost in sorrow. And then the poet realizes that he has wasted the first part of the day in depression and sorrow because he was repenting for what has happened to him. So had he not wasted his first part of the day, his whole day had been very nice. But the change in his mood and made him realize that he should utilize the rest of the day in some useful activity.
लेकिन जैसे उसका मूड में चेंज हो, मूड में बदलाव होता है कवि के, आई मीन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, जैसे ही स्नोफॉल उसके शरीर पर गिरता है, डस्ट पार्टिकल स्नोफॉल का, स्नो का सॉरी, वैसे ही उसका मूड चेंज हो जाता है और सोचता है कि फर्स्ट हाफ तो खराब हो गया है, फर्स्ट ऑफ द डे हैज बीन स्पॉइल्ड, तो सोचता है सेकेंड हाफ ऑफ द डे क्यों खराब करे, उसको यूटिलाइज करने को सोचता है. His sorrow was washed away by the light shower of snow dust. और उसका दुख जो पूरा फेड हो जाता है, उसका दुख गायब हो जाता है. He just gets rid of the depression by the light shower of snowfall. So he is away from depression now and he is seen in a happy mood. His spirit was revived and he got ready to utilize the rest of the day. उसके अंतरात्मा से आवाज आई, उसके कॉन्शियसनेस, हाँ, उसके सेल्फ कॉन्शियसनेस जगा और उसको ये सद्बुद्धि मिल गई कि बाकी का जो दिन है, जो दिन बचा हुआ दिन है, समय जो दूसरे पहर का, हाँ, फर्स्ट हाफ का तो खराब हो गया था, सेकेंड हाफ का बेटर जाए. तो यही वह सोचने लगेगा, अब जो बाकी का जो समय बचा है उसको बर्बाद नहीं करेगा. He must not waste that time. So see, here the poet is standing under a hemlock tree and how the crow shakes, he shakes the hemlock tree and the dust of snow particles falls upon the body of the poet. First, where it falls, it's not mentioned, it falls on the head but it falls on the body. Body means it may be on the head or on the shoulders, okay, on the hand. So now I will read out the poem and explain to you. This poem consists of 8 lines only, 8 lines only. And these 8 lines gives a true message, a very deep message to the readers, to the people, to the students. ये जो 8 लाइन है बच्चों, ये गहरा छाप छोड़ता है लोगों के हार्ट और माइंड में, बच्चों पर भी, तुम सब पर एक बहुत गहरा असर छोड़ेगा ये जो 8 लाइन्स ऑफ द पोएम है. बिकॉज इट्स रिटन इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज द मूड ऑफ द poet has been compared with the crow and hemlock tree. Okay, now you see. It's written by Robert Frost. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. So the poet was standing under a hemlock tree and he was seen in a very depressed mood. He was in a sorrowful mood. And what happened at that time? That time he was thinking very hard and he was in grief. So at that time what happened? A crow who was sitting on the branch of a hemlock tree, the crow, it shook down the dust of snow on the poet. मतलब कि एक कौवा जो कि एक हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था, एक धतूरे का पौधे पे बैठा हुआ था, उसकी डाली पर वो क्या किया, शेक करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया. क्या, ब्रांच, ट्री का जो ब्रांचेस होता है, शाखा, उसको शेक करना शुरू कर दिया, हल्का फुल्का हिलाना डुलाना शुरू कर दिया. और जैसे ही हिलाना डुलाना किया, जो डस्ट पार्टिकल्स जो थे स्नो के, वो कवि के शरीर पर गिर गए. उसके बाद क्या हुआ? Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो जैसे ही हेमलॉक ट्री से ये डस्ट पार्टिकल्स, आई मीन स्नो का डस्ट पार्टिकल्स जो गिरा, वैसे ही इसका दिल में कवि की वजह से गिरा, इसका मन शांत हो गया. जो मन विचलित था, विचलित मन एकदम शांत हो गया. And there was a change in the mood. From depression stage, he
changed himself to a happy stage. So there was seen transformation in his behavior. Okay, जो एक डिप्रेस्ड मूड में था, गुस्सैल था, उस मूड से वो एक हैप्पी एंड एक्साइटेड मूड में कवि चले आते हैं। और उससे क्या होता है, एक वह फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे तो खराब हो गया था उनका, ड्यू टू डिप्रेशन, ड्यू टू टेंशन, ड्यू टू बैड मूड, ड्यू टू एंगर, किसी बात को लेके होगा। लेकिन उनको लगा कि एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे तो खराब हो गया दिन, अब सेकंड पार्ट को खराब नहीं चाहते थे। आई एंड शिफ्ट सम पार्ट ऑफ ए डे, और सोचे कि सेकंड पार्ट जो है वो उनका अब अच्छा जाएगा, क्योंकि उनका मूड चेंज हो गया है। और ये कह रहे थे कि उसके लिए रिपेंट करके फायदा नहीं है। He must not repent for the first half of the day he had wasted. जो बर्बाद कर दिया उन्होंने पहला हाफ, उसके लिए रिपेंट नहीं करना चाहिए, आगे के बारे में सोचना चाहिए। तो इसी प्रकार से कवि का मूड चेंज हो जाता है, उनका हार्ट चेंज हो जाता है, उनका मन बदल जाता है, और गुस्से वाले स्टेज से वो हैप्पी मूड में चले आते हैं। तो यही चेंजेस हमें देखने को मिलता है कवि में। तो ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक, दिस इज अ ड्रास्टिक चेंज विच कम्स इन द माइंड एंड हार्ट ऑफ द पोएट। सो दिस इज व्हाट द poem tells us and what the poet gives us a message, that we must not repent for what had happened. ओके, वही फ्यूचर की बात है, फर्स्ट हाफ में जो खत्म हुआ, दैट रिलेट्स टू फ्यूचर ओनली। वी मस्ट नॉट रिपेंट, बट वी मस्ट चेंज आवर मूड एंड थिंक वी मस्ट नॉट वेस्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टाइम वी मस्ट नॉट वेस्ट, बिकॉज टाइम इज प्रीशियस देन गोल्ड. So there should be proper time management, and one must not spend his time in bad mood or sorrowful mood, so that his life would be affected adversely. So this is a strong message to the readers, that you must not be in bad mood, and bad mood could be removed by thinking over the good things, and you must think good things, my dear children. Then only your mood will be changed. You must create interest in studies by thinking about good things. Now next, this is the end of the poem. Now poetic devices. I will just give out some poetic devices of this poem. First poetic device is assonance. Assonance, what is that? The sound of vowel O is prominent. Shook down on me. You see, sound of vowel sound देखिए यहाँ, shook में भी आता है, down में भी आता है, on में भी vowel sound जो O बार बार रिपीट होता है, vowel sound. इसको बोलते हैं vowel sound का रिपीटेशन जब होता है कविता में बार बार, और खास करके vowel sound जो एक क्या बोलते हैं, एक कोई भी वॉवेल साउंड जो बार बार आता है, जो फिक्स्ड है, जो ओ यहां पर बार बार आया है, तो इसको बोलते हैं एजोनेंस. देन देयर इज एंजैममेंट. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एंजैममेंट. द सेंटेंस इज बीइंग कंटिन्यूड टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स. इट हैज बीन यूज्ड थ्रू आउट द स्टैंजा. सो बिना पंक्चुएशन मार्क का ये देखो सेंटेंस, देखिए ये चलते रहा है. फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ. कहीं पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ना फुल स्टॉप है, ना कॉमा है, ना एक्सक्लेमेशन मार्क है, ना कोई ऐसा मार्क है. तो इसको जब कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं रहेगा किसी लाइंस में, जब कविता वाली बात आती है थ्रू आउट द स्टैंजा, तो इसको बोलते हैं एंजैममेंट. याद रखें. नेक्स्ट इज मेटाफर. The poet has compared the snowflakes with dust in line 3. So line 3 में snowflakes को dust से कंपेयर किया है पोएट ने. लाइन 3 में देखिए, लाइन 3 में स्नो उसको डस्ट से कंपेयर किया, डस्ट ऑफ स्नो.
मीन्स पार्टिकल्स ऑफ स्नो. ओके, डस्ट कंपेयर किया है थर्ड लाइन में. तो ये होता है मेटाफॉर. वी कैन सी दैट द डस्ट इज कंपेयर्ड विथ स्नोफ्लेक्स. सो दिस सॉर्ट ऑफ कंपेरिजन इज कॉल्ड मेटाफॉर. देन देयर इज इमेजरी. द पोएट हैज गिवन द विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द होल स्टैंजा. सारे स्टैंजा का एक विजुअल डिस्क्रिप्शन दिया, एक लाइव पिक्चर के जैसा आता है. तो ये क्या है? इमेजरी. देन देयर इज राइमिंग स्कीम. राइमिंग स्कीम इज A B C D C D. Okay, this is the rhyming scheme. You can see crow, the way a crow swooped down on me, A B C C D C D. This is the rhyming scheme, okay, of the poem. Contrast. We can see some contrast in the poem. The poet has used two words, crow and snow, to show contrast. Contrast दिखाने के लिए दो शब्दों का यूज किया है, crow और snow. The crow stands for something dark and doomy, while the snow stands for something light and pure. तो crow किसके लिए आता है? कोई चीज डार्क एंड डूमी, मतलब बुरा चीज हो गया, डार्क एंड डूमी. और जो स्नो होता है ये लाइट के लिए आ गया, प्रकाश के लिए, और कोई प्योर चीज के लिए. नाउ you see alliteration. Alliteration is also a poetic device. Occurrence of same letter at the beginning of closely connected words. Same letter शुरुआत में यूज होता है beginning of closely connected words के साथ. Has given my heart and saved some part. तो occurrence of same letter at the beginning of closely connected words आप देख पा रहे हैं. Has given my heart and saved some part. Now you see symbolism. When something has been used as a symbol, कोई चीज है सिंबल का रूप में जब यूज होता है तो उसको बोलते हैं सिंबोलिज्म. जैसे the hemlock tree is a poisonous tree which has been used as a symbol of death by the poet. Hemlock tree क्या है? एक poisonous tree है, जहरीला पौधा है जिसको सिंबल ऑफ डेथ का रूप में यूज किया गया है पोएट द्वारा. The crow has been used as a symbol of something inauspicious or something which can worsen a person's mood, as the crow is often regarded as the ugliest of all animals. तो crow क्या है? ये inauspicious चीज के लिए, बहुत ही मतलब अशुभ चीज के लिए इसका यूज हुआ है, इसको अशुभ से कंपेयर किया गया है, और समथिंग विच कैन वर्सन अ पर्सन्स मूड, और जो कि कुछ ऐसा चीज होता है जो क्रोज को सब कंपेयर किया गया है जिससे कि किसी व्यक्ति के मूड को भी खराब कर देगा. क्रो की अगर बात की जाए, एज द क्रो इज रिगार्डेड एज द अगलीस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, क्योंकि क्रो को सभी जानवर, सभी पक्षियों में सबसे कुरूप माना जाता है, क्रो को, कौवे को. इसलिए क्रो स्टैंड्स फॉर बैड ओमेंस. ओके, अशुभ चीजों के लिए ये क्रो आता है. नेक्स्ट. सो वी हैव कम to the end of this lesson, this beautiful poem. So I will come with a new topic in the next class. Till then, bye bye, see you.